Okay, aspirants, today we will discuss about bases. Okay, last week we discussed about acids, how their proper reactions, okay, how they made reactions and their properties. We already discussed. Today we will discuss about the bases. Okay, so base, a chemical product which accepts protons to form salt and water as the only products. Okay, the metallic hydroxide and metallic oxides are called bases. The general formula of metallic hydroxide is MOH whole twice X, where X is the valency of metal. ठीक है, बेस हम किसी को कहते हैं जो कंपाउंड में, किसी भी केमिकल कंपाउंड में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, डोनेट करने वाला बेस था और एक्सेप्ट करने वाला जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट जो करेगा वो बेस होगा. ठीक है, और आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है. ठीक है, और मेटालिक हाइड्रोक्साइड, जितने भी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, जैसे कि MgO है या NaO है, जितने K2O है, Na2O है, ठीक है, ये सब क्या है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड है या मेटालिक सॉरी MgOH होल ट्राइस है. ठीक है, ये सब क्या है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड. और मेटालिक ऑक्साइड क्या हो गया, MgO ऑक्साइड हो गया. ठीक है, तो MgO जैसे मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया, और MgOH होल ट्वाइस, तो ये क्या हो गया आपका मेटालिक हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे कह रहा है कि X इज द वैलेंसी. ओके, सो यहाँ पे Mg OH होल ट्वाइस मीन्स जो ये दो है, ये दो वैलेंसी किसकी है, Mg की. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेस. देन नेक्स्ट थिंग इज कम that in the case of metallic hydroxide and bases, one thing you have to understand about the alkalis. Okay, what is alkalis? So these are the water soluble bases. Okay, so water soluble bases are known as alkalis. First thing you have to understand. Then which is in aqueous solution produce hydroxyl ions as the only negatively charged particles. Okay, they only form the hydroxyl ion as the negative charge and NaOH, KOH, NH4OH and CaOH whole twice calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide is sparingly soluble. Okay, it is sparingly soluble in water. So you can say these soluble water soluble bases means they will be soluble in water. Okay, so examples are NaOH. Okay, example दे रखे हैं आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जब भी हम इनको वाटर में डालेंगे. तो Na प्लस और OH माइनस, तो आप देखेंगे कि वन कॉमन थिंग आपको दिख रही होगी इनमें कि ये एक तो प्लस आयन में और दूसरा माइनस में, दोनों में. ठीक है, एनायन और कैटायन दोनों में टूट रहा है. और मेनली जो डेफिनेशन है बेसिस की, एल्कलीज की, ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं जो एकमात्र नेगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है, पार्टिकल होता है इसमें, तो OH माइनस ये रिलीज करेंगे. ओके, so this is the definition of alkalis. Okay, this is the definition of alkalis. And next thing is ammonium ion. Okay, ammonium ion, you can see that the ammonium ion is formed between ammonia molecule and hydrogen ion. Okay, in last chapter also we discussed about it in brief. So if you are not seeing that video, you can understand now also that the ammonium ion is formed between ammonia molecule and hydrogen ion. Okay, NH3 plus H plus. In ammonia there are three single covalent bonds between nitrogen and hydrogen and one lone pair of electrons on nitrogen atom, as you already read in your previous class. The hydrogen ion shares the lone pair of electrons from nitrogen atom to complete its duplet by a coordination bond or coordinate bond. Okay, thereby leading to the formation of an ammonium ion. So it's very simple. First process for that formation of ammonia molecule. पहले अमोनिया मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है, NH3. ठीक है, इसमें एक एक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इसमें हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है और जो नाइट्रोजन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है. ठीक है, दो लोन पेयर इसमें बच जाते हैं. तो इस तरह से जो है ये अमोनिया मॉलिक्यूल बनता है फर्स्ट. सेकेंड में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन और NH3 मिलकर ही तो बनाते हैं अमोनियम आयन. ठीक है, तो उसमें से H, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बना दिया H आयन. ओके, एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ ammonium ion. How this formed? Okay, you have to add this. Okay, ammonium ion in this. Okay, in between O लिखा है, गलत छपा है, यहाँ पे N होगा. Okay, इसको ध्यान रखना, N होगा, NH4 माइनस.
ठीक है, एंड NH4 एंड प्लस, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर चार्ज प्लस का चार्ज है ये ऊपर बना दोगे, ठीक है, सिंपली यहाँ पर समझ लो इसको। ओके, लास्ट वीक भी हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस ही मेनली हमने डिस्कस किया था। ओके, so this is the formation of ion, ammonium ion. Next thing, bases are classified on the basis of their strength, acidity and concentration. Okay, so this is again the things which we read for acids also. So strong bases, the bases which are completely or almost completely ionized in their aqueous solution are called strong, okay, bases. The solution of a strong base contains high concentration of hydroxyl ion, एग्जाम्पल NaOH और KOH, ठीक है, NaOH कभी भी स्ट्रॉन्ग बेसिस आता है तो NaOH और KOH तो नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ओके, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा कोई सोल्यूशन में वही हो जाएगा उसमें, और हाई कंसंट्रेशन होगा किसका, हाइड्रोक्सिल आयन का, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। फिर नेक्स्ट, देन we will discuss about the weak bases. The bases which incompletely or partially ionized in their aqueous solution are weak bases. The solution of a weak base contains low concentration of hydroxyl ion molecules. Example are NH4OH, COH whole twice. Okay, इस तरह के एक और इसमें एग्जाम्पल है CH3 COH का, लास्ट में देखा था हमने एसिटिक एसिड, इट इज ऑल्सो वीक बेस, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिडिटी ऑफ अ बेस, the number of replaceable hydroxyl ion present per molecule of a base ionization on complete ionization in its aqueous solution is called acidity of a base, ठीक है। जैसे हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा था, सेम चीज है, बेसिसिटी में क्या पढ़ा था, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या प्रोटॉन H प्लस प्रेजेंट है, ठीक है, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ OH माइनस प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं उस बेस की एसिडिटी, ठीक है। जैसे मोनोबेसिक एसिड है, एग्जांपल से समझो, मोनोबेसिक बेसिस, सॉरी, ठीक है, द बेसिस व्हिच कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस, एक ही हाइड्रोक्सिल आयन इसमें प्रेजेंट होगा, जैसे कि देख सकते हो NaOH, Na+ और OH माइनस, ठीक है, एक ही देख रहे हो ना, हाइड्रोक्सिल आयन में ब्रेक हो रहा है जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल है डाई एसिडिक बेस का, ठीक है, डाई एसिडिक बेस क्या होगा, जिनमें क्या होंगे, दो हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ देख लो, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसको हम अगर डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये Ca+2 आयन में और 2 हाइड्रोक्सिल आयन में, देख रहे हो, इन दोनों में 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस में भी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं डाई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक में कितने हो जाएंगे, 3 OH आयन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्राइएसिडिक बेस, these bases contain 3 हाइड्रोक्सिल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल आयन जो है मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म तरीके से दिया गया है, आप इसको फॉलो करके नोट्स भी बना सकते हैं इजीली। Now we will talk about the methods of preparation of base. Okay, as we discuss about the method of preparation of acid. Okay, same as कैसे हम बेसिस को बनाते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है जनरल कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम बेसिस को बनाते हैं। पहली रिएक्शन है आपकी बाय रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ओके, मेटल्स की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम burn in oxygen, okay, burn in oxygen to form their respective oxides, ठीक है, अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड ये बना देते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, इसमें जो हम बेसिस बना रहे हैं, ठीक है, बेसिस बनाने की ये मेथड है। तो K2O, ठीक है, ये मेनली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम मेटल है, मेटल क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो बेसिक ऑक्साइड मीन्स क्या हुआ, बेस ही तो हुआ है ना। तो यहाँ पे पहला रिएक्शन जिससे K+O2 K2O बना रहा है, ठीक है, Ca+O2 CaO, फिर बैलेंस इक्वेशन को आप कर सकते हैं इजीली। देन सेकेंड रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। फिर सेकेंड मेथड ये है कि जो इसके मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे ये मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, इनकी हम रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, ठीक है, तो बना देता है ये अमोनिया के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और इसमें जो
soluble basic oxides हैं and ammonia dissolving in water produces soluble bases। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देख लो, एक सोडियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड हो गया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो इसने बना दिया NaOH। ठीक है, तो ये क्या बन गया, NaOH बन गया। NaOH इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ऐसे K2O जैसे आपने देखा यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड है, रिएक्शन कराई KOH बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही अमोनिया की रिएक्शन कराई, ठीक है, अमोनिया की रिएक्शन कराई तो यहाँ पर बन गया NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स में कैसे रिएक्शन होती है वाटर की। ठीक है, उसके बाद जो आपको बेस मिलेगा, कैसे, एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड or metallic oxide depending on the nature of metal and the concentration of and the conditions of temperature। okay, it is related to the temperature basically। ठीक है, ये वाटर की रिएक्शंस भी आपने पढ़ी है लास्ट ईयर। ठीक है, इन वाटर चैप्टर। ठीक है, उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल। पहले देखो कोल्ड के साथ, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है तो सिंपल एक तो बेस बन जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ओके, देन पोटेशियम के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन जो है रिलीज होगी। कैल्शियम के साथ भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होगी। जिंक और आयरन में देखो, जिंक और आयरन में आपको जो है स्टीम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड वाटर नहीं चलेगा, हमें बॉइलिंग वाटर लेना पड़ेगा और वही स्टीम उसकी केवल वेपर फॉर्म में। ओके, सो ये बना लेगा जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन इसमें भी जो है लिबरेट होगी। ओके, सो ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, मेटल की या तो ऑक्साइड बनेगा या बेसिस बनेगी। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड बनेगा, या तो बेस बनेगा या बेसिक ऑक्साइड बनेगा, वो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड है और कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, next is by the precipitation of metallic hydroxide from their soluble salt। okay, precipitation reaction यहाँ पर take place होगी। in this case interchange of radicals in solution take place, that is double decomposition। ठीक है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, पिछले चैप्टर में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में डबल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे कैसे होगा डबल डिकम्पोजिशन, पहला एक एग्जांपल देख लो। ओके, see this example, CuNO3 whole twice cupric nitrate when react with sodium hydroxide। cupric nitrate react with sodium hydroxide, it forms cupric hydroxide। क्या बना रहा है, cupric hydroxide बना रहा है and sodium nitrate। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट इसमें बन रहा है। देखो इंटरचेंज ऑफ रेडिकल्स कैसे हो रहा है, आपको यहाँ पे दिखेगा COOH। ठीक है, यहाँ पे होल ट्वाइस इससे बना दे रहा है और NaNO3 इससे अटैच हो जा रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, एक एग्जांपल और लो, FeCl3, दूसरा एग्जांपल FeCl3। ठीक है, इस एग्जांपल को देखो, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो रही है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है, तो यहाँ पे FeOH होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ पे सिंपल देख लो और NH4Cl। ठीक है, सिंपल रिएक्शन हो रही है, जैसे MgSO4 में MgOH होल ट्वाइस और K2SO4, FeOH होल ट्वाइस, यहाँ पर फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है और NaCl। ठीक है, और NaCl के साथ अटैच होगा यहाँ पे। इस तरह से सिंपल रिएक्शन है। ओके, केवल इंटरचेंज करना आपको रेडिकल्स को, और डबल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों जगह डिकम्पोज होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना FeCl2 की जब भी रिएक्शन होगी NaOH के साथ, ठीक है, तो ये बनाता है आपका फेरस हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर फेरिक क्लोराइड की और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो बनाएगा आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। आपको बता रखा है कि वैलेंसी के आधार पर होता है, अगर ज्यादा वाली वैलेंसी है, 3 इसकी वैलेंसी है तो फेरिक, अगर 2 वैलेंसी आएगी तो फेरस को बोला जाएगा। नेक्स्ट है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटालिक कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन से मेटालिक कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव देयर रेस्पेक्टिव मेटालिक ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। जब आप हीट करते हैं, ठीक है, किसी भी मेटालिक कार्बोनेट को, तो आपको जो है आपका मेटल ऑक्साइड मिल जाता है, यानी कि बेसिक जो नेचर का होगा, जैसे जिंक कार्बोनेट व्हाइट कलर का। ठीक है,
ये बना देगा जिंक ऑक्साइड और CO2 इसमें लिबरेट होती है। ऐसे PbCO3 लेड कार्बोनेट वाइट कलर का, जो इसको हम हीट करते हैं तो ये बना देता है लेड ऑक्साइड, ओके, जो लाइट येलो है कलर में, ठीक है। एंड CO2 will be liberated after that, ओके। तो ये हो गया लेड ऑक्साइड। एक और रिएक्शन है इसमें, ठीक है, इसे मैं इसमें बोर्ड पर बता देता हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटालिक नाइट्रेट। अब मेटालिक नाइट्रेट अभी हमने मेटालिक कार्बोनेट से बनाया था, ठीक है, अब हम बनाएंगे मेटालिक नाइट्रेट से। सो मेटालिक नाइट्रेट, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस, ओके, को हीट करेंगे तो ये बना देता है लेड ऑक्साइड, ओके, प्लस NO2 प्लस O2। तो अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 to 6 है, 2 to 4 और 5 भी हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सिंपली, ठीक है, यहाँ पे 2 PbO लगाएं और यहाँ पे भी 2 PbNO3। अब यहाँ पे NO की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो गई है, ठीक है, तो इसको हमको भी 4 करना होगा। तो इस तरह से देखो, तो लेड नाइट्रेट को जब भी हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा रेडिश येलो हॉट और लाइट येलो कोल्ड कलर का आपको लेड ऑक्साइड, ठीक है, इसका ऑक्साइड मिल जाएगा। ऐसे ही एक रिएक्शन और है Cu, ठीक है, जिंक के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, ऐसे ही CuNO3 होल ट्वाइस, ये बना देगा आपका 2 CuO प्लस 4 NO2 प्लस O2, ठीक है, बाकी रिएक्शन सेम रहेंगी। ऐसे ही जिंक के केस में भी ZnNO3 होता है 2 ZnNO3, यहाँ पे जिंक की जगह जिंक लिख लेना, ठीक है, बाकी सेम है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिससे हम बेस को बनाते हैं, बेसिस फॉर्मेशन ऑफ बेसिस, ओके। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज का बताऊं तो बिटर टेस्ट, ठीक है, सिंपल है, तो बुक्स में दिया है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती नहीं ज्यादा, तो आपको वैसे पता है सोपी टच होता है, तो सिंपल पढ़ के आ रहे हैं आप स्मॉल क्लासेस से। एंड इंडिकेटर कलर चेंज करें तो रेड लिटमस में क्या करेगा, ये रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देता है, रेड टू ब्लू में, ठीक है, सिंपल है, रेड से ब्लू में चेंज कर देगा। दूसरा है आपका फिनोप्थिलीन के साथ रिएक्शन, फिनॉल फेथिलीन के साथ क्या रिएक्शन होती है इसकी, ये कलरलेस टू पिंक, ठीक है, कलरलेस से पिंक बना देगा इसको, फिनोप्थिलीन को पिंक कलर हो गया, तो समझो ये बेस है मटेरियल। एंड मिथाइल ऑरेंज में क्या रिएक्शन दिखाता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में, मिथाइल ऑरेंज में जो मिथाइल ऑरेंज का कलर है, ऑरेंज से हो जाता है आपका येलो, okay. So if these changes are occur, then we will called it as base, okay. The substance which show these properties, we called it as bases, okay. So these are the things which we discussed today. In next classes we will read about or understand the chemical properties and reactions, okay, chemical properties of bases, okay, chemical properties of bases we will read in next class.